Good morning, everybody. Welcome to Literature Vidya. As we had promised, we are here with a series of lectures on the history of English literature. These notes have been made after the detailed reading of the Rutledge, William J. Long, and David Dyches. I hope these notes help you in your exam preparations. So, let's begin our first lecture in the series that's on the Anglo-Saxon age. So whenever we begin any particular age, okay, we first try and understand the history of that age, है ना? क्योंकि जब हम उस एज की हिस्ट्री को समझते हैं तभी हमें उसका लिटरेचर ज़्यादा बेहतर समझ आता है. Why? Because कोई भी एज की हिस्ट्री उसके कल्चर को, उनके लाइफस्टाइल को, उनके बिलीफ सिस्टम को रिफ्लेक्ट करती है, राइट? और ये रिफ्लेक्शन ही हमें लिटरेचर में दिखता है, राइट? सो टू बेटर अंडरस्टैंड अ पीस ऑफ लिटरेचर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो the history of that particular age. So that's what we are going to do here. We are going to first trace down the WH family of the Anglo-Saxons. We are going to trace down the what, where, why, how, and then proceed on to the literature and do the deep analysis of the Anglo-Saxon literature. So let's begin. The Anglo-Saxon invaders came to Britain in the later part of the 5th century, right? तो Anglo-Saxon invaders ब्रिटेन आ रहे हैं when? In the later part of the 5th century. तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि 5th century से पहले यहाँ कौन लोग रहते थे, right? So Romans used to live here initially before the 5th century. फिर यहाँ पर Anglo-Saxons आते हैं, they establish and lay the foundations of the English culture and English language. वो इंग्लैंड को उसका नाम देते हैं, उसकी भाषा देते हैं, right? And also give it links with Germania. Now, how do they give England its link with Germania? Because ये जो Anglo-Saxon लोग हैं, ये natively Germanic people हैं. These are basically 3 major tribes of German, जो अब ब्रिटेन में आकर रहेंगे. Why? Because now they've kicked the Romans out of Britain. Anglo-Saxons were Teutonic people who disrupted the existing Roman Empire, right? तो इन्होंने रोमन जो लोग हैं उनको उठाकर बाहर फेंक दिया है, right? Okay. The interesting, okay, now what is more interesting is that कि before they kicked the Romans out of Britain and established their kingdom here, 400 years before that, there was a Roman historian by the name of Tacitus, जिसने इन Germanic लोगों के बारे में लिखा था. He said कि ये जो लोग हैं, they are uncivilized, they are barbaric people, right? Against we, the Romans, who are civilized, right? Who are Christian. Why? Because ये जो Anglo-Saxons थे, अभी भी इनके अंदर Christianity enter नहीं हुई है. They are still believing in their heroic culture, in their folklore, in their chivalry, and in their Germanic tales. Yeah? So the Romans are basically calling these German people as uncivilized, right? So Romans define the Anglo-Saxons as alien people with no political structure and who reflect the heroic ideals far removed from Roman Christian theory and practice, right? But still, okay, but still, whatever they call them, एक basic सा formula है कि जभी भी कोई भी दो culture पास में आएंगे, या let's leave the cultures, जभी भी कोई two different people come together, you make a friend, right? And maybe he's very different from what you are. But gradually, as you live along with that individual, you gradually imbibe the qualities of that individual. You don't realize, but you get something of him or her in you, right? So that's called the fusion, right? The fusion of the two cultures also happen when the two culture come in, right? And something new is produced out. So that's what's happening here. That is why we often say we should choose our company with care. Yeah, because they're gradually going to decide who you will become in the future. Yeah, so that's what they're talking about. He's saying, but still, as two different cultures come in contact, the gradual fusion of their ways of life, thought took place, right? So, वो gradual fusion हुआ and something new came out, right? So, barbarism or Christianity or civilized लोगों का fusion हुआ and basically something of the Roman went with the Anglo-Saxon and something of the Anglo-Saxons the Roman also took away with them, right? And we'll see that in their
literatures also reflected out. Yeah. Now, the most important question, who these Anglo-Saxons are, right? So as Bede mentioned, okay, so Bede is a very, very important poet in the Anglo-Saxon age, and he has written a very important book that's called Ecclesiastical History of England, right? Bede has written a very, very important book that's called the Ecclesiastical History of England, right? And there he says that Anglo-Saxons are basically three powerful tribes of the nation of German, right? तीन powerful tribes हैं German nation की, ठीक है? तो Saxons जो हैं वो आए हैं साउथ ऑफ डेनमार्क एंड ईस्ट ऑफ हॉलैंड से, राइट? तो सैक्सॉन्स कहाँ से आए हैं? दे हैव केम फ्रॉम साउथ ऑफ डेनमार्क एंड ईस्ट ऑफ हॉलैंड, जबकि जो एंग्लिकन हैं वो मॉडर्न जूटलैंड से आए हैं, और जो जूट्स हैं वो ईस्ट ऑफ लोअर राइन से आए हैं, राइट? सो दीज आर द थ्री डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे बेसिकली कम फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन, राइट? And they've come here in Britain and established their kingdom by kicking out the Romans. Okay. अब because these are all three tribes of German, तो इनकी language same है, but because they come from different regions, they have dialectical difference. Yeah. So the language of all three of them is same with a little dialectical difference. Okay. So let's move forward now. Now, and the Romanized Britons were pushed to the western corners of England, right? और जो Romans थे उन लोगों को हमने western corners of England में उठाकर फेंक दिया है, right? And finally they withdrew from England in 1410, right? 410, sorry. तो अब ये लोग इंग्लैंड से चले गए, they've left England in AD 410. This is a very important date and you have to remember it. कब रोमन्स इंग्लैंड छोड़कर कब चले गए? इन AD 410. ओके ओके, तो वी गॉट टू नो कि ये लोग कैसे आए, कैसे एस्टैब्लिश हुए, यहाँ पे कैसे सेटल डाउन हुए, ठीक है? अब बिफोर कंटिन्यूइंग लेट मी गिव यू सम इंटरेस्टिंग फन फैक्ट. ओके, तो वी ऑफन यू माइट हैव हर्ड अबाउट द आर्थरियन स्टोरीज, एज तुमने कहीं ना कहीं लिटरेचर में आर्थर एंड हिज नाइट्स एंड द राउंड टेबल, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट, राइट? तो ऐसा माना जाता है कि मे बी ये आर्थर की स्टोरीज हमने कहीं ना कहीं रोमन कल्चर से ली है, पर इसका कोई पुख्ता एविडेंस नहीं है, इट्स जस्ट बिलीव्ड. पर ऐसा कहते हैं कि हम लोगों ने पहली बार इन आर्थरियन स्टोरीज को 9th सेंचुरी के आसपास ट्रेस किया था, राइट? यू नो दैट दीज आर्थरियन स्टोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट when you read the Anglo-Norman age, and we will read about them in the Anglo-Norman period and the Middle English period, right? So we yet not sure whether we have the links of the Arthurian stories with the Roman age or not, but what's very, very clear is that in the 9th century it was an English man named Geoffrey of Monmouth. कौन था? Geoffrey of Monmouth, who first elaborated the Arthurian stories in his Historia Regum Britannia, right? उसने पहली बार Arthurian stories को elaborate किया था किसमें? In his book that was called the Historia Regum Britannia, right? Who? Geoffrey of Monmouth, right? This is very important and you have to remember it. Okay, now let's continue and let's look down at what sort of literature did the Anglo-Saxon people write, right? So since we've already talked that these people have yet not entered into Christianity, right? तो अभी भी तो इनकी poetry भी वही heroic culture, वही folklore, वही chivalric ideals को reflect down करेगी, right? That's what it will show, right? So heroic poetry which has traces of pre-Christian heroic society and the links of English with Germania, right? And what language were they using? They were using either Old English or Anglo-Saxon language, right? अब इनकी वर्स जो थी वो alliterative थी, right? The verse was alliterative. Stressed, हम लोग इसका मीटर जो है वो stressed मीटर यूज कर रहे हैं, but no rhyming, right? It wasn't rhyme. And then a very, very special feature that you find in the Anglo-Saxon age is a definite pause. That's called the caesura, right? इसको हम क्या बोलते हैं? We call it as a caesura, right? ये एक gap होता है, एक definite pause होता है. Basically, how a particular text is written, तुम्हें उसी के हिसाब से समझ आ जाता है कि there is a gap because you leave a certain space. किसी भी दो लाइन या दो चार वर्ड्स के बीच में तुम एक जगह छोड़ देते हो, राइट? उसको हम एक डेफिनाइट पॉज बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिजोरा, राइट? इफ आई ट्राई एंड एक्सप्लेन यू हाउ इज इट रिटन, तो एक बार देखो, जैसे एक ये लाइन है, फिर ये लोग गैप छोड़ देते हैं बीच में और फिर एक और लाइन लिखते हैं,
यहाँ पे आई एम नॉट गिविंग यू ऑथेंटिक एग्जाम्पल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ दिस सिसोरा वर्क्स, राइट। तो जैसे मान लो हेलो हम यहाँ लिख रहे हैं और यहाँ हम लिख रहे हैं हाउ आर यू, ठीक है, और ये बीच में हमने गैप छोड़ा है, तो इसी गैप को ही ये लोग क्या बोलते थे, दे यूज्ड टू कॉल दिस एज शिजोरा, राइट। इज इट क्लियर? यप। तो 3 फीचर्स हैं इस यहाँ की हेरोइक पोइट्री के। पहला कि वो एलिटरेटिव होती थी, राइट, इट इज एलिटरेटिव। दूसरा स्ट्रेस्ड मीटर यूज होता था, है ना, और तीसरा अनराइम्ड होती थी, अनराइम्ड होती थी, और सिसोरा होता था इसमें। या क्लियर? आगे चलें। ओके, so now it says 30,000 lines of Anglo-Saxon poetry survived in 4 manuscript, right? तो around literature में around 30,000 lines of Anglo-Saxon poetry have survived and with 4 major manuscripts, right? Okay, so now we say अब धीरे धीरे इन Anglo-Saxon लोगों के बीच में Christianity आएगी, right? और तब इनका literature भी बदलेगा। तो the conversion of English people to Christianity began with the arrival of Augustine in Kent, right? तो अब ऑगस्टाइन आता है केंट में, और अब ये जो है ये अपना क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का मिशन शुरू करेगा, और ये लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेगा। सबसे पहले यहाँ के राजा को ही, द किंग ऑफ केंट को ही ये क्रिश्चियन बना देगा, और फिर धीरे धीरे इनके आइडियल्स को बदलेगा, और इनके लिटरेचर भी धीरे धीरे तुम देखोगे ट्रांसफॉर्म होंगे, उनमें भी वो रिलीजियस आइडियल्स आएंगे, right? So the conversion of English people to Christianity began with the arrival of Augustine in Kent in 597 and he was sent by Gregory the Great, right? इसको किसने भेजा था? इसने इसको you can call it's Gregory the Great ने उसको यहाँ भेजा था with his band of monks to achieve the missionary task, right? कि यहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करो। किसको भेजा गया था? ऑगस्टाइन को भेजा गया था, और वो कहाँ आया था? केंट में आया था। और कब आया था? 597 में। यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट। 597 में वो आया था। अब तक हमारे लिए 2 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला 410, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोमन्स इंग्लैंड को छोड़कर चले गए थे। दूसरा 597, क्यों? क्योंकि ऑगस्टाइन केंट में अराइव करता है और वो अपना मिशनरी मिशन शुरू करता है, ठीक है। अब सबसे पहले वो The king of Kent was converted to Christianity. Augustine established his seat at Canterbury, और Augustine अपनी सीट कैंटरबरी में establish कर लेता है, ठीक है। The development of English Christianity was not continuous but sporadic, right? Continuous process नहीं था, एक sporadic process था, मतलब वो इतना smoothly भी नहीं गया। वैसे भी let's talk generally, जब भी तुम कुछ नया शुरू करने की कोशिश करते हो, या फिर you try to change your lifestyle, or you try to study more, or you try to achieve something, you face problems, you face difficulties, रोड़े भी आते हैं बीच में। So nothing in life is a continuous process, हर एक चीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आती ही आती है। So here also जब ऑगस्टाइन ने 597 में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का मिशन शुरू किया, so that wasn't a continuous process, it was sporadic, वो टुकड़ों में हुआ, right? अब why did it happen as a sporadic process is because the ideals of Roman Church and Irish Church differed, right? क्योंकि जो रोमन चर्च और आयरिश चर्च के आइडियल्स थे वो आपस में मैच नहीं हो रहे थे, राइट? दे वर डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर, इसीलिए ही ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं था, राइट? 632 में देयर इज अ डेथ ऑफ क्रिश्चियन एडविन किंग ऑफ नॉर्थम्ब्रिया, राइट? 632 में जो क्रिश्चियन एडविन था, जो किंग था नॉर्थम्ब्रिया का, वो मर जाता है, राइट? और कौन मारता है उसको? उसको मारता है किंग ऑफ मर्सिया, राइट? किंग ऑफ मर्सिया, किंग एडविन, जो कि क्रिश्चियन था, जो कि राजा था नॉर्थम्ब्रिया का, उसको मार देता है, राइट? और उसके बाद काफी टाइम तक नॉर्थम्ब्रिया में क्रिश्चियनिटी नहीं होती, क्रिश्चियन चर्चेस बंद हो जाते हैं, राइट? टिल हमारा एडन और उसके फॉलोअर्स नहीं आते और वो वापस आकर क्रिश्चियनिटी एस्टैब्लिश करते हैं, राइट? तो ये ऐसे चलता रहता है, दिस इज अ प्रोसेस दैट कीप्स ऑन गोइंग, कि वो आता है, फिर कोई और आता है, फिर कोई और आता है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं होता, राइट? फाइनली इट इज इन 663, अगेन द थर्ड इंपॉर्टेंट डेट, 663 में हमारे पास साइनोइड ऑफ विटबाई होती है। क्या होती है? साइनोइड ऑफ विटबाई, और ये एक लैंडमार्क मीटिंग है। क्यों ये एक लैंडमार्क मीटिंग है? ये एक लैंडमार्क मीटिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सारे क्रिश्चियन मिशनरीज को बुलाया जाता है, उनसे बोला जाता है कि अपने अपनी प्रॉब्लम्स को पुट फॉरवर्ड करो और सिट डाउन ऑन द टेबल एंड रिजॉल्व योर इश्यूज, राइट?
और फिर यहाँ पर फाइनली वो सारे इश्यूज रिजॉल्व करते हैं और ये क्रिश्चियनिटी की जो भी हर्डल्स हैं जो इसको स्प्रेड करने में हिंडरेंसेस हो रही हैं वो रिजॉल्व आउट होती हैं and everybody finally settles down, right? So this is important. 663 Synod of Whitby, right? ये important है. तो अब तक हम अब before beginning up with the Anglo-Saxon literature, अभी एक बार हम 3 important dates हैं हमारे पास जो हम एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, है ना? सबसे पहली जो हमारी important date है वो 410, ठीक है? 410. दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट डेट है जब ऑगस्टाइन आता है यहाँ पर, दैट इज 597. और थर्ड जो है वो है 663, है ना? तो 410 में क्या होता है, जो रोमन्स हैं वो चले जाते हैं इंग्लैंड को छोड़कर. 597 में क्या होता है, ऑगस्टाइन आता है और वो अपना क्रिश्चियनाइजेशन का मिशन शुरू कर देता है. और 663 में क्या होता है, एक लैंडमार्क मीटिंग होती है जिस कॉल्ड साइनोइड ऑफ विटबाई, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोइड ऑफ विटबाई हम उसको बोलते हैं. और ये एक लैंडमार्क मीटिंग होती है जहां पे मेजरली सारे क्रिश्चियन प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है? तो अभी हमें उसका वी ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द एंग्लो सैक्सन एज, है ना? हमने हिस्ट्री ट्रेस कर ली है. तो अब हम उसका लिटरेचर शुरू करते हैं, राइट? तो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर, ठीक है? तो एंग्लो सैक्सन हीरोइक पोइट्री विच हैज इट्स लिंक्स टू द ओल्ड पेगन लिटरेचर ऑफ हीरोइक एज, राइट? सबसे पहले ये ओरल होता था, राइट? बिकॉज ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये बेसिकली शुरू हुआ था कोर्ट्स में जा जाके. जो हमारे पोएट्स होते, जो हमारे स्कॉप्स होते थे, वो किंग्स और चीफ्स के बीच में जा जाके वो लोग ओरली रिसाइट करते थे. तो यहाँ से यहाँ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर शुरू हुआ था, राइट? सो इट वॉज ओरल इन नेचर, राइट? सो ये ओरल पेगन लिटरेचर से शुरू हुआ था जो हमारा एंग्लो सैक्सन लिटरेचर था, राइट? This stressed alliterative verse is a product of oral court ministrally, right? ये एक oral कोर्टों में जा जाके जो recitations करते थे उसका result है. It's a product of oral court ministrally या oral court recitations, right? Which was recited by the scop, the poet, in the hall of king and chief. ठीक है? One of the earliest surviving Anglo-Saxon poem is Widsith. तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट लिटरेचर आ गया है हमारे पास, विडसिथ. तो अगर कोई पूछे कि विच इज द अर्लीएस्ट सर्वाइविंग एंग्लो सैक्सन पोएट्री, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट इट इज विडसिथ, राइट? और ये बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट था जो एक स्कॉप ने ही लिखा था, बिकॉज ओरल रेसिटेशन का टाइम था, स्कॉप खुद लिखते थे और जाके उसको रिसाइट करते थे, राइट? तो विडसिथ भी एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट था, राइट, विच वॉज रिटन बाय वन ऑफ द स्कॉप्स. Okay, and gives और यहाँ पे because he is writing autobiography, he will give you a glimpse of the Germanic world, their culture, their belief system, and how this is even reflected down in the Anglo-Saxon literature, right? So it gives you a fascinating glimpse of the Germanic world as it appeared to the imagination of the Anglo-Saxons, right? So पहला important text जो हमारे पास है वो है कौन सा है, विडसिथ. और ये किस में पाया गया था, हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास 4 मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, उसमें से जो पहली थी दैट्स कॉल्ड द एक्जीटर बुक. तो विडसिथ भी हमारा एक्जीटर बुक का पार्ट है, राइट? इट्स द पार्ट ऑफ द एक्जीटर बुक. और ये 10th सेंचुरी में लिखा गया था इन द वेस्ट सैक्सॉन डायलेक्ट, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट. विडसिथ हमारा पहला एंग्लो सैक्सन टेक्स्ट है, ये एक्जीटर बुक में लिखा गया है, 10th सेंचुरी में इसको लिखा गया है और वेस्ट सैक्सॉन डायलेक्ट में इसको लिखा गया है, ठीक है? ओरिजिनली ऐसा माना जाता है कि इट वाज कंपोज, नॉर्थम्ब्रिया में इसको कंपोज किया गया. विडसिथ का मतलब होता है एक फार वॉन्डरर, राइट? जो दूर दराज के इलाकों में ट्रैवल करता है, बेसिकली वो जर्मैनिक के डिफरेंट एरियाज में ट्रैवल करता है और उन सबको अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट के माध्यम से लिखता है, राइट? तो आई होप वी आर क्लियर विद विडसिथ. विडसिथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. विडसिथ के हमें कितने पॉइंट्स याद रखने हैं, तो अगर हम विडसिथ की बात करें तो हमें याद रखना है कि विडसिथ जो है वो हमारा पहला एंग्लो सैक्सन टेक्स्ट है, राइट? विडसिथ क्या है, ये हमारा पहला एंग्लो सैक्सॉन टेक्स्ट है ना? ये पहला पॉइंट है हमारा. दूसरा ये है कि ये एक्जीटर बुक में लिखा गया है. कहाँ लिखा गया है, एक्जीटर बुक में, राइट? और ये कब लिखी गई थी, इट वॉज रिटन इन द 10th सेंचुरी, राइट?
10th सेंचुरी में ये लिखी गई थी, है ना? किस डायलेक्ट में? वेस्ट सैक्सॉन डायलेक्ट में, राइट? वेस्ट सैक्सॉन डायलेक्ट में लिखी गई थी। और ऐसा माना जाता है कि ओरिजिनली ये जो है ये नॉर्थम्ब्रिया में लिखी गई थी, नॉर्थम्ब्रिया में लिखी गई थी ये, ठीक है? और विडसिथ का मतलब है एक वॉन्डरर। क्या मतलब है? एक वॉन्डरर। ओके, आई होप नाउ यू आर क्लियर विद विडसिथ, ठीक है? तो अब आगे शुरू करते हैं। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, दैट्स द बियोवुल्फ, राइट? ये बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, राइट? सो वी विल कंटिन्यू विद दिस टेक्स्ट, वी विल फॉलो डाउन and begin from here in our next lecture, right, which will follow in from Beowulf only. Okay, so keep watching, keep enjoying, keep learning, and if you follow this lecture series, I'm sure you'll get good with the history of literature. So show your love and goodbye. Study hard.